وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے احمد آباد کے سابرمتی آشرم کا دورہ کیا اور گاندھی جی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے آشرم میں مہاتما گاندھی کی طرز زندگی اور آشرم کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے آشرم میں گاندھی جی کے زیر استعمال چرخے کو گھما کر اس کا معائنہ بھی کیا۔ رام نومی کی یاترا کے دوران اشتعال انگیزی پر بی جے پی کے ملعون رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس نے یاترا کے دوران اشتعال انگیزی کی تھی اور اس کی اشتعال انگیزی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس پر پولیس نے اس کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ دارالشفا میں قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی دیوار منہدم ہو گئی۔ اس واقعے میں کسی کی ہلاکت یا پھر کسی کی موت کی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ اس واقعے میں ماروتی کار کو شدید نقصان پہنچا۔ یاقوت پورے کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کونسل میں مجلس کے امیدوار مرزا ریاض الحسن آفندی کے ساتھ عید میلاد تقریب میں شرکت کی۔ سید کلیم الدین ابتدائی صدر مجلس کی جانب سے سنتوش نگر کے قلندر نگر میں اس عید میلاد تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں مظفر حسین کارپوریٹر، شفاعت کارپوریٹر اور دوسروں نے بھی شرکت کی۔ سنتوش نگر ڈویژن یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جناب ہمارے ریاض الحسن افندی ایم ایل سی صاحب کو دوبارہ نامنیٹ کرنے کی خوشی میں اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد کی پارٹی کے موقع پر جناب اکرم صاحب جو سنتوش نگر ڈویژن کے ہمارے ایریا پریزیڈنٹ ہے، کمیونٹی ہال میں مظفر صاحب کارپوریٹر کی نگرانی کے اندر آج ایک بہترین تقریب کا یہاں پر ایک رکھا گیا تھا، جس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے ابتدائی کے کافی لوگ موجود ہیں۔ صدر معتمدین کے علاوہ مجلس کے چاہنے والے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے اندر جناب طیب بھائی صاحب جو ملک پیٹ کانسٹیٹنسی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام بستی کے ذمہ داروں کے علاوہ مسجد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے 10 اپریل کو ینگ انڈیا پولیس اسکول کا افتتاح متوقع ہے۔ افتتاحی تقریب کی تیاریاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ تقریباً 1200 مہمانوں کی میزبانی کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے عملہ مصروف ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے 5 کروڑ روپے کے خصوصی گرانٹ کے تحت محض 100 دنوں میں اس اسکول کو حقیقت کا روپ دینا ایک چیلنج بھرا لیکن نہایت پرجوش سفر رہا۔ یہ اسکول پولیس کے تمام رینکس کے بچوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے خواب کی تعبیر کے قریب ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ و وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے آندھرا پردیش پولیس کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس ملازمین برسر اقتدار تلگو دیشم پارٹی کے چوکیداروں کی طرح کام کرتے رہے تو وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے دوبارہ اقتدار میں آنے پر پولیس کی وردی چھین لی جائے گی۔ ایک سب انسپکٹر نے وائی ایس جگن موہن ریڈی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کی وردی آپ کا دیا ہوا تحفہ نہیں ہے جو چھین لی جائے۔ پولیس ایک دستوری ادارہ ہے جس کا مقصد قانون نافذ کرنا اور عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ ఎల్లకాలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన సాగదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన వస్తుంది. ప్రతి పోలీస్ అధికారికి కూడా చెప్తా ఉన్నా, మీ బట్టలు ఉడదీస్తామని చెప్పి ప్రతి పోలీస్ అధికారికి మీ యూనిఫామ్ తీస్తాం, శబ్దపూర్వకంగా మిమ్మల్ని నిలబెడతాం, దోషులుగా మిమ్మల్ని నిలబెట్టి మీ యూనిఫామ్ తీయించి మీకు ఉద్యోగాలు లేకుండా చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా ఇప్పటికైనా చెప్తా ఉన్నా, ప్రతి పోలీస్ అధికారిలో కూడా మార్పు తెచ్చుకోండి. ఎల్లకాలం ఇదే పరిపాలన సాగదు. మీరు చేసిన ప్రతి పనికి కూడా వడ్డీతో సహా లెక్కేసి మిమ్మల్ని దోషులుగా నిలబెట్టి మీతో కక్కిచ్చే కార్యక్రమం ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రతి పోలీస్ అధికారికి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. اے سی بی نے سوریا پیٹ ضلع کے مارریڈی گڑم پولیس اسٹیشن کے انچارج سب انسپکٹر این انتی ریڈی کو رنگ ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق انتی ریڈی نے ایک مقدمے میں ملزم کو گرفتار نہ کرنے اور محض BNSS کی دفعہ 35 کے تحت نوٹس جاری کرنے کے لیے
शिकायत कुनिंदा से 15,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। बाद अज़ां सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनिंदा से 10,000 रुपये रिश्वत की रकम कबूल की। ताहम ACB ने उन्हें पकड़ लिया। HCU तनाज़ा केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए गच्चीबोली पुलिस के सामने BRS के कायदीन कृषांक और दिलीप पहुंचे। इसी दौरान BRS लीडर कृषांक ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की और HCU अराजी पर AI वीडियोज़ की तैयारी के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को खारिज करने की ख्वाहिश की। 4 FIR इसी मामले के सिलसिले में दर्ज की गई हैं। हुसैन सागर में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून की जान हैदरा और DRF के अमले ने बचाई। ज़राए के मुताबिक कुकटपल्ली राजीव गांधी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 36 साल खातून मेरी ने ख़ानदानी झगड़ों से तंग आकर खुदकुशी की गर्ज से हुसैन सागर में छलांग लगा दी। मुकामी अफराद की इत्तला पर DRF के अमले ने वहां पहुंचकर रस्सियों की मदद से पानी में उतर कर खातून की जान बचाई। बीवी की हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या बेंगलुरु में पेश आया। इस शख्स की शिनाख्त 40 साल प्रशांत नायर के तौर पर की गई है। इसकी बीवी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती है। इनके दरमियान अक्सर झगड़े होते थे और प्रशांत नायर अक्सर अपने वालिद को बताता था कि उसकी बीवी उसे ज़हनी तौर पर हरासा कर रही है। बीवी की हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए नायर ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में SOT पुलिस ने एक मुजरा पार्टी को नाकाम बना दिया। ये वाक़या रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल के हुदूद में पेश आया। बताया जाता है कि फार्म हाउस पर पुलिस ने आज सुबह के अवलीन सातों में धावा किया। राजेंद्र नगर SOT पुलिस ने ये कार्रवाई की और 7 ख़वातीन के अलावा 14 मर्दों को हिरासत में लेकर मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। दुबई के वलीअहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मुंबई की दलाल स्ट्रीट पर वाक़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और वहाँ की सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल की। रील्स के शौक़ में नौजवानों की हद से बढ़ने वाली हरकतें हालिया दिनों में देखी जा रही है। ऐसा ही एक वाक़या नागर कर्नूल ज़िले के अमराबाद मंडल में पेश आया, जहां एक नौजवान को पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए देखा गया है। पुलिस गाड़ी में रील्स बनाकर इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि यह नौजवान सब इंस्पेक्टर का रिश्तेदार है। वीडियो वायरल होने के बाद CI ने इस वाक़े की शिकायत आला हुकाम से की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील शमशाद ने कहा कि वक्फ से मुताल्लिक़ पूरी स्कीम चाहे मजहबी नुक्ते नज़र से देखी जाए या 1995 में कायम और बाद में तरमीम शुदा कानूनी दफ़ात से इस तरमीम के ज़रिए ये बात वाज़ेह हो गई है कि मजहबी और कानूनी दोनों पहलू मुतासर हुए हैं। इन तमाम नुकात को उठाया जाएगा और ये मामला अदालत में पेश किया जाएगा। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से इस मामले में था, JPC के सामने भी पेश हुए थे और इस मामले को हमेशा से उठाते रहे। तो उनका बीइंग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम बॉडीज़, ये चैलेंज करना एक तरह से वो वाजिब था। तो वो चैलेंज किया गया है और उसमें ये इश्यूज उठाए गए हैं कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये चूँकि ये रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस चैरिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए आर्टिकल 25 का ये वायलेशन होता है, क्योंकि आर्टिकल 25 में कोई भी वक्फ कर सकता है अपने हिसाब से, और उसमें जो उसका पर्पस होता है वक्फ क्रिएट करने का, कि वो मस्जिद बनेगी या वो एक स्कूल बनेगा या एक वो ऑर्फनेज बनेगा, तो वो इस पर्पस स्टेट किया जाता है। वनस्थलीपुरम कम्मागुड़ा में अराजी के तनाज़े के सबब शदीद कशीदगी देखी गई। अराजी के तनाज़े में दोनों फरीक़ैन के दरमियान आपस में हमले हुए। बसों के शीशे इस हमले में तोड़ दिए गए और कई बाइक्स को आग लगा दी गई।
कुमागुड़ा के सर्वे नंबर 240 में वाक़ 10 एकड़ अराजी के मामले पर ये तनाज़ा है। प्लॉट्स मालिकी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमने ये प्लॉट्स 20 साल कबल खरीदे थे। मकान तामीर करने के बाद रिहाइश इख्तियार की गई, लेकिन अब अराजी पर कब्जा करने वाले अफराद गुज़िश्ता चंद दिनों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। अहमदाबाद में जारी AICC के इजलास के मौके पर कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदरनशीन सोनिया गांधी के अलावा लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और CWC के अरकान मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना ने एक अहम फैसला लेते हुए NVS रेड्डी की खिदमात को हैदराबाद मेट्रो रेल और हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर बरकरार रखने की हिदायत दी है। बल्दी नज़्म और शहरी तरक्की महकमे की जानिब से जारी करदा काम के मुताबिक हुकूमत ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया कि मेट्रो फेज़ 2 के मंसूबे की तैयारी और अहम दस्तावेज़ात की तैयारी के मराहिल में NVS रेड्डी का अहम रोल रहा है। उनकी मुसलसल वाबस्तगी मंसूबे की कामयाब तकमील के लिए ज़रूरी समझी गई है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्ख संभल तशद्दुद के सिलसिले में SIT के सामने हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि मुझे BNSS से नोटिस दी गई थी, मुझे अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है, मैं हर तरह से ताउन करने के लिए हाजिर हुआ। मैंने इन तमाम सवालात के जवाब दिए। SIT इंचार्ज कुलदीप कुमार ने कहा कि उन्हें रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्ख को 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई तशद्दुद की सरगर्मियों के सिलसिले में तलब किया गया था और उनसे पूछताछ की गई। देखिए, जो बात हुई है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था BNSS का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है, तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में मैं पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किए उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। फिर से आपको बुलाने की अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने सवाल किए थे ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूँ कि दोबारा नौबत नहीं आए। आपने बताया था कि आपको स्वास्थ्य भी कुछ करना स्वास्थ्य था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद इस वजह से गया क्योंकि कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं लगे कि मैं जांच को टालना चाह रहा हूँ, उसमें सहयोग नहीं करना चाह रहा। और दूसरा, खासतौर से हमारे जो मीडिया के भाई हैं वो पहली मीडिया ट्रायल कर देते हैं कि जांच से भाग रहे हैं या वो है। मिसाल के तौर पर जब ये केस दर्ज हुआ था तो उसी समय मैं हाई कोर्ट में मेरे अपने जो हमदर्द है, मेरे मुशीर हैं, उन लोगों ने रिट दायर करवाई थी इसके केस के खिलाफ, क्योंकि मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट गलत हुई थी। तो मीडिया वालों ने पहले ट्रायल कर दिया कि गिरफ्तारी के डर से भाग गए। अब ये बताओ, जहां हमारे पर कोई गलत अगर वो लिखेगा तो हम किससे न्याय मांगे? हमारे संविधान के तहत न्यायपालिका है, तो इसलिए हमारा हक बनता है। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो तो इसलिए मीडिया ट्रायल के तहत नई बातें नहीं बने, इसलिए बस में वकील भी आपके साथ है पूरे मामले में? वकील तो मेरे साथ बाहर ही बैठे हुए थे और इससे फिर वो इसलिए गए थे, जाहिर सी बात है ये मेरा लीगली मेरा राइट है कि कहीं कोई जरूरत हो तो मैं उनकी मदद लीगली ले सकूं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।